ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करूं? Yes, sir. ओके, so this is lecture number 8, and in this lecture we will cover Unix process states model. Unix is one kind of operating system. Linux is advanced version, or we can say it updated version of Unix operating system. Like DOS is a command based operating system which deal with the student and which deal with the users by putting some commands, and user can access all the resources by putting commands. Similarly, Unix will work, and the graphical user version is Linux. Like you are using the Windows, which is the graphical user version, graphical user interface. You have some graphics, you can use the mouse, keyboard by selecting some icons. Similarly, in Linux operating system, the same graphical user interface will be created at the system booted. So in this topic, we will discuss the process states model. In the last lecture, we have already discussed that process having 5 different states. It starts our life cycle from new states, then it goes to ready state, then it goes to running states, and if there are problems in execution, it will transfer from running to sweeping or waiting states. Again, it will complete our input output requirement, then it will goes to ready state. Again, it will schedule by dispatcher and transfer from ready states to running states. Then it will complete our execution and release the resources and gets terminated to itself. So this is simple process state model, but if we talk about the multi-user operating system, or we talk about the Unix operating system or Linux operating system, then it has a different states model of related to process. So different operating system can have a different states model of process. We cannot limit it that every operating systems deal with only 5 state of a process. Some operating system having 7 states process model, some operating system having 9 states of process model, and some operating system have 5 states of process model. Right? So in Unix, we are dealing with the process states model, and we will look after that how many states can have if process is created by using Unix operating system. So if more than one user are interacting with the Unix operating system or Linux operating system, then what will be the process, how the process is created, and what are the various states comes in their life cycle. So this is our today's topic, Unix process states model. So let's begin the lecture. Unix process states diagram. Process states and transitions. We have already talked about process states, in which we have already discussed that process is created and process shift from state to ready state, and process is created by using the fork system call. Fork system call is nothing just a function or a procedure which that can be used by user and operating system also. Both can use fork system call to create a new process. So step number 8, we are starting from here, because by using the fork system call, we can create or we can design a new process. Now, once a process is created, there may be two possibilities: whether primary memory is having enough memory, or maybe it does not have enough memory.
So in case of enough memory, the process will transfer in step number 3. That means ready to run in memory. So this is called the user area. Right here in the step number 8, by using a fork system call, user can create a new process. After creating a new process, after putting all the input output requirements, it will transfer to the U area. State number 3 called a U area, or we can say in the primary memory, every user having its own area to do something, to deal with the process, to deal with the context of the process. So step number 3 is called user area, where some memory space are occupied by the user, and that area is prohibited by the user. So it is ready to run in memory, we can say. So once a process is created, it transferred to the primary memory. In primary memory, we have a lot of areas, every user having its own area. Every user having its own access to use that area, right? So U area is prohibited by individual users. User cannot access the data structure which are manipulating in other U area. So let's understand U area first, and we will deal. Suppose this is the primary memory. Let's consider the whole area is considered as a primary memory. Now in this primary memory, there are so many users are interacting. Let's suppose user number 1, user number 2, and user number 3. Let's suppose this is the area of user number 1, this is the area of user number 2, and this is the area of user number 3. So this is how the primary memory is divided with certain number of users, and each user having its own area to deal with their commands, to deal with their programs and process. Whatever the user want to do, it can do with only uh, its own U area provided by the Unix operating system. So let's suppose user number 1 apply some commands like ls for listing the files and directories, pwd for print working directory, suppose cd for change directory, and so on. Every command become the process. So user 1 running 3 different process. Similarly, user, let's suppose it is executing program number 1.c, program number 2.sh, shell program. So this is the task of user number 2, and user number 2 running 2 different process. First is it is executing program number 1, that is extension C. That means C program is running by the user in their U area. And the another program which is executing by the user number 2 is program 2.sh. sh is the extension which denoted that
user number 2 is running a shell program. So like in Windows, we are executing the C program which having its own grammar and syntax. Similarly, in Linux operating system, we can design the shell program which having its own structure, variable declaration, print statement. They having its own grammar. So program may be in C extension, program may be in SH. Similar, sub so सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। okay. Yes sir. नो सर, सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही सर। किसी को नहीं आ रही है? नो सर। नो सर। Just कितने 2 मिनट। स्क्रीन No, sir. वाह, हेलो, आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। ओके, ओके, स्क्रीन विजिबल हुई? यस Yes, sir. यस राइट। सो हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिक्स सर्वर पे या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मशीन में इंस्टॉलेशन होता है, उस मशीन में जो भी प्राइमरी मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी डिवाइड हो जाती है कई सारे यूजर्स के यू एरिया के बेस पर। सो हमने यहाँ पे सपोज किया है, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है,
कई सारे यूजर को मौका मिलता है, चांस मिलता है कि वो अपने प्रोग्राम्स को, अपनी कमांड्स को, अपने शेल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाए। और ये केवल एक यूजर के लिए लिमिटेड नहीं होता है, कई सारे यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी में अपना कॉन्टेक्स्ट, अपने प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, क्योंकि हम यूनिक्स का प्रोसेस स्टेट्स मॉडल समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस क्रिएट कैसे होती है। तो हर एक कमांड, सपोज यूजर नंबर 1 हम 3 कमांड चला रहा है, ls कमांड, pwd कमांड, cd कमांड। ls कमांड फॉर लिस्टिंग द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, pwd फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यूजर की करंट लोकेशन कहाँ पर है, वो किस फाइल पर है, किस डायरेक्टरी पर है, उसकी करंट लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूनिक्स के पास एक कमांड है pwd। और सपोज यूजर अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाहता है तो कमांड है cd। तो यहाँ पर जैसे ही ls कमांड चलती है, ये कमांड का जो डेटा है ये प्रोसेस बनता है, क्योंकि ls कमांड की जो भी dll फाइल है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, तो वो है प्रोग्राम। बट यूजर ने जैसे ही अपने प्रॉम्प्ट पे ls कमांड चला दी, एग्जीक्यूट कर दी, तो वो प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेस में। यही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है, तो वो प्रोसेस बन जाती है। तो यहाँ पे ls प्रोसेस बन गई, pwd प्रोसेस बन गई और cd प्रोसेस बन चुकी है। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस रन है और सभी प्रोसेस का क्रिएशन एक प्रोसीजर कॉल के थ्रू, एक सिस्टम कॉल के थ्रू होता है, और वो सिस्टम कॉल होता है फॉर्क सिस्टम कॉल। इसी तरह से यूजर 2 में भी 2 बार फॉर्क सिस्टम कॉल यूज हुआ है, और यहाँ पे प्रोग्राम 1.c एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हुई और ये प्रोसेस बनी। इसी तरह से प्रोग्राम 2.sh फॉर्क सिस्टम कॉल को यूज करके एक प्रोसेस बन जाती है। इसी तरह से प्रोसेस यहाँ पे यूजर नंबर 3 में प्रोसेस 2 क्रिएट हुई। तो सबसे पहले जो हमारा डायग्राम यदि हम देखें कि स्टेप नंबर 8 से हमारे वर्किंग स्टार्ट होती है, तो फॉर्क सिस्टम कॉल बहुत सिग्निफिकेंस रखती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसी सिस्टम कॉल से एक नई प्रोसेस क्रिएट होती है, और ये इंटरनल कमांड स्ट्रक्चर है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलाता है जैसे ही हमें नए प्रोसेस को क्रिएट करना होता है। अब फॉर्क सिस्टम कॉल से जब एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो जाती है, तो वो प्रोसेस का पूरा कॉन्टेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी में आना स्टार्ट हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी में कहाँ पर आएगा, तो प्राइमरी मेमोरी हमने डिवाइड कर दी है अलग अलग यू एरिया में। इसको हम कहते हैं यू एरिया। ये है यूजर नंबर 1 का यू एरिया, जिसको हम यूजर एरिया बोलते हैं, यूजर एरिया 1। इसे हम कहेंगे यूजर एरिया 2, और इसे हम कहते हैं यूजर एरिया 3। तो ऐसे हर एक यूजर के लिए प्राइमरी मेमोरी डिवाइड हो जाती है, और इसी से मेमोरी प्रोटेक्शन भी होती है। यदि हम कह रहे हैं कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में अगर कई सारे यूजर एक साथ लिनक्स सर्वर पे या यूनिक्स सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व कैसे है, प्रोटेक्शन कहाँ प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहली प्रोटेक्शन तो यहीं पर प्रोवाइड होती है कि हर एक यूजर एरिया दूसरे यूजर एरिया से डिफ्रेंशिएट रहता है, अलग रहता है, आइसोलेट रहता है, राइट। इस यूजर 1 के जितनी भी प्रोसेस है, उनका डेटा स्ट्रक्चर, उनका जो भी मैनिपुलेशन है, वो इस एरिया में ही लिमिटेड होता है। तो यूजर 1 की प्रोसेस कभी भी यूजर 2 की प्रोसेस से क्लैश नहीं करेगी, इनके डेटा स्ट्रक्चर में कभी भी मिसमैच नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो यहीं पर आ जाती है प्रोटेक्शन की, कि किस तरह से यूज़र अपनी कमांड्स चला सकता है, यूज़र 2 अपनी कमांड चला सकता है, और यूज़र 3 कैसे हम अपनी कमांड चला सकता है। और तीनों यूज़र एक साथ साइमल्टेनियसली अपने प्रोग्राम्स को, अपनी कमांड्स को यूनिक्स सर्वर पर एग्जीक्यूट करते हैं और रिस्पॉन्स ले लेते हैं अपने टर्मिनल पे। हर एक यूज़र एरिया का एक बाउंड्री होता है, इसी से हम वैलिड और इनवैलिड डेटा को मैच करते हैं।
आप इसको एक सेगमेंट मान सकते हैं कि इस सेगमेंट में स्टार्टिंग एड्रेस होगा और इस सेगमेंट का कोई क्लोजिंग एड्रेस होगा, और इस पूरे स्टार्टिंग और क्लोजिंग सेगमेंट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ बाइट्स है, जो भी इस सेगमेंट की साइज होगी, उस साइज के बेस पर ही हम कोई एड्रेस जनरेट करवा सकते हैं। तो अगर इस सेगमेंट के अंदर किसी भी डेटा को एक्सेस करना हो तो जो एड्रेस जनरेट होगा वो वैलिड एड्रेस होगा, और अगर इस सेगमेंट के बाहर का कोई आप एड्रेस एक्सेस करना चाहते हैं तो वो इनवैलिड एड्रेस बन जाता है। तो हर एक क्यू एरिया का एक प्रॉपर स्टार्टिंग एड्रेस है, क्लोजिंग एड्रेस है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, इसी से वैलिड और इनवैलिड एड्रेस का भी पता चलता है। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 3। तो 8 नंबर की स्टेप से डायरेक्टली हम मूव करते हैं या तो स्टेप नंबर 3 पर या स्टेप नंबर 5 पर। अगर प्राइमरी मेमोरी में इनफ मेमोरी है, हमारा प्रोसेस आसानी से रह सकता है कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो हम स्टेप नंबर 3 पर मूव करते हैं, रेडी टू रन इन मेमोरी। देन इसके बाद हमारी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कर्नल एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे दो एरिया बन जाते हैं, एक होता है कर्नल एरिया और एक होता है यूज़र एरिया। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो यूज़र वाला काम है, कि जैसे यूज़र एलएस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है, पीडब्ल्यूडी कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहता है, सीडी कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहता है, बट इन कमांड का जो एग्जीक्यूशन वाली फाइल है कि एलएस कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगी और वो कैसे करंट वर्किंग यूज़र की डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी है वो डिस्प्ले करा देगी। दैट मीन्स एलएस का एक्चुअल पर्पस क्या है और एलएस काम कैसे करेगी, पीडब्ल्यूडी काम कैसे करेगी, सीडी कमांड काम कैसे करेगी। प्रोग्राम 1.c में अगर कोई आपने लाइब्रेरी यूज़ की है, सपोज प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया है, स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया है, तो इन तरह के फंक्शंस को अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्योंकि इन फंक्शन की भी एग्जीक्यूटेबल फाइल या इनका भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रिंटफ के लिए स्कैनफ के लिए भी तो कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है कि प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करेगा, इससे रिलेटेड जो फाइल्स होती है वो फाइल कर्नल एरिया में रहती है। तो यहाँ पे दो एरिया है, एक होता है कर्नल एरिया और एक होता है यूजर एरिया। तो हम एक डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज फिलहाल दो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और ये वाला जो एरिया है मेमोरी में, ये है कर्नल एरिया। सबसे पहले दोनों एरिया का इंट्रोडक्शन हो जाए। यूजर एरिया वो एरिया है जिसमें यूजर अपने प्रोग्राम्स और प्रोसेस को रन करता है। कर्नल एरिया वो एरिया है प्राइमरी मेमोरी में जहां पर उन प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स स्टोर होती है, उन कमांड्स की डीएलएल फाइल, वो कमांड्स कैसे रन होगी, किसी भी फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन है स्क्वायर रूट निकालने का, प्रिंटफ फंक्शन है, सीआर फंक्शन है, गेट फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन एक सी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आप प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ करते हो प्रिंटफ फंक्शन, बट उसकी डेफिनेशन आप कभी भी नहीं देते हो क्योंकि उसकी डेफिनेशन होती है कर्नल एरिया में। तो यदि हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन कमांड्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं जिनका एग्जीक्यूटेबल कोड यूज़र एरिया में अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज एक प्रिंटफ फंक्शन है और ये प्रिंटफ फंक्शन के लेट सपोज कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसे कर्नल एरिया को पता है, जो कर्नल को पता है कि प्रिंटफ अगर फंक्शन किसी सी प्रोग्राम में यूज होगा तो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसा होता है कि यूजर एरिया में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाते हैं जिनका एग्जीक्यूटेबल कोड यू एरिया के पास अवेलेबल नहीं होता है।
तो यू एरिया से उस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट को स्वेप आउट करना पड़ता है कर्नल एरिया के अंदर, ताकि प्रिंटफ की जो भी वर्किंग है, इसका जो भी डीएलएल फाइल है, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाए। इसलिए एक यूज़र के प्रोग्राम्स को जो कि यू एरिया में एग्जिस्ट करता था, उसको हमें कर्नल एरिया में लेके जाना है, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से फुलफिल करे, और फिर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद वापस कर्नल एरिया से यू एरिया में वो शिफ्ट हो जाए। तो इट इज़ पॉसिबल कि यूज़र एरिया से प्रोग्राम कर्नल एरिया में मूव करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद वापस से वो मूव करेगा यू एरिया में, क्योंकि आउटपुट तो यू एरिया में ही दिखेगा, एग्जीक्यूशन यू एरिया में होगा, बट सर्टेन फंक्शन की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, उसका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसका जो कोड है, वो कर्नल एरिया में जाकर ही उसके साथ अटैच होकर आएगा। इसी तरह से अगर कोई कमांड्स है तो एलएस कमांड का जो आउटपुट है वो किस तरह से आउटपुट जनरेट होगा, तो आउटपुट रिसीव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एलएस कमांड की प्रोसेस को कर्नल एरिया में जाना होगा। तो ये भी कर्नल एरिया में जाएगा, एलएस कमांड किस तरह से काम करेगी और उसका जो एग्जीक्यूटेबल वर्जन है वो यहाँ पे रन होगा, और फिर उसका जो आउटपुट है एलएस कमांड का आउटपुट वापस कर्नल एरिया से मूव करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा यू एरिया में। सो जो कमांड्स आप चलाते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस कमांड का एग्जीक्यूशन कर्नल एरिया में होगा, बट उसका जो आउटपुट है वो आपको यू एरिया में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो यूनिक्स का प्रोसेस स्टेट्स मॉडल है, यहाँ पे दो एरिया कहलाते हैं, एक है यूजर एरिया और एक है कर्नल एरिया। तो रेडी टू रन इन मेमोरी जो है स्टेप नंबर 3, ये कहलाता है यू एरिया, जहाँ पर हम प्रोसेस को स्टोर करते हैं। अगर प्राइमरी मेमोरी में इनफ स्पेस है तो हमारी प्रोसेस वहाँ पे स्टोर होगी, अगर उसकी पूरी रिक्वायरमेंट है तो वो रेडी टू रन हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो स्वेप आउट हो जाएगी। वापस से हम रेडी टू रन करके उसको स्वेप आउट कर देते हैं, और फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल करके स्वेप इन कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 5 से दो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेप नंबर 3 से 5 की ओर स्वेप आउट, और स्टेप नंबर 5 से 3 की ओर स्वेप इन। स्वेप आउट का मतलब है कि प्रोसेस रेडी स्टेट में आई थी, रेडी टू रन स्टेट में आई थी, दैट मीन्स रेडी से रनिंग स्टेट में आ चुकी थी, जो कि यू एरिया का एरिया है, यूज़र का एरिया है, और उस एरिया में जो रनिंग स्टेट थी वहाँ पे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाई, जिसके कारण उसको वापस से स्वेप आउट किया गया और उसको स्टेप नंबर 5 में सेंड कर दिया गया। स्टेप नंबर 5 में एक और एरो आ रहा है जो स्टेप नंबर 6 से है, बैकअप्स। दैट मीन्स अगर प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक स्लिप मोड में है या स्वेप्ट मोड में है तो उसको वापस से बैकअप कॉल दिया जाता है और उन प्रोसेस को स्टेप नंबर 5 में पहुंचाया जाता है, जो कि अगेन एक यू एरिया है, और फिर उसे स्वेप इन किया जाता है स्टेप नंबर 3 में, और स्वेप इन करने के बाद हम उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में ले आते हैं और फिर वहाँ पर सीपीयू एलोकेट होता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। और अगर एग्जीक्यूशन के समय उसको कोई भी फंक्शंस की प्रोटोटाइप नहीं मिलती है, उस फंक्शन का कोड नहीं मिलता है, तो वो डायरेक्टली रीशेड्यूल होती है स्टेप नंबर 2 में, जो कि कर्नल एरिया है। कर्नल एरिया में वो सभी एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं जो किसी न किसी प्रोसेस के रिक्वायरमेंट्स वाले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस यूज़र एरिया में 2 में जो हमने प्रिंटफ फंक्शन या एक सी प्रोग्राम बनाया था, उसमें एक प्रिंटफ फंक्शन की रिक्वायरमेंट करी, बट प्रिंटफ फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो यूज़र एरिया 3 और 5 में सॉल्व नहीं हो सकती, तो उसके लिए उस प्रोसेस को स्टेप नंबर 2 में मूव करना होता है। तो यहाँ पे कर्नल एरिया में जब उसका कोड अटैच हो रहा होता है या उसका प्रिंटफ का कोड, स्कैनफ का कोड इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो रहा होता है, उस समय हो सकता है कुछ इंटरप्ट आ जाए, राइट। इंटरप्ट आ जाए या कोई सिस्टम कॉल्स जनरेट हो जाए या कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट जनरेट हो जाए, तो वापस उस प्रोसेस को रिटर्न कर दिया जाता है यूज़र रनिंग एरिया में।
राइट। तो स्टेप नंबर जो हमारी 1 7 3 5 ये टोटल हमारी एक यू एरिया को एक्सप्लेन करती है यूनिक्स के। यूजर रनिंग एरिया में जब हमारी प्रोसेस चली जाती है दैट मीन्स फिर से उसमें कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होने के बाद वापस से उसको सेंड कर दिया जाता है कर्नल एरिया में। स्टेप नंबर 3 और 7 के बीच में एक डॉटेड लाइन है और स्टेप नंबर 1 से 7 के बीच में एक एरो है। अब यहाँ पर हम रनिंग प्रोसेस जो कि कर्नल किसी प्रोसेस को रन कर रहा था स्टेप नंबर 2 में, और अगर कुछ ऐसा इंटरप्ट आ जाता है या फिर कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनको हमें सपोज टाइम शेयरिंग सिस्टम पे चलाना है, तो कर्नल एरिया में अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग टाइमिंग के बेस पे चलाना पड़ता है। जैसे सपोज हमने टाइम क्वांटा 4 मिलीसेकेंड का रखा है, तो हर एक प्रोसेस को 4 मिलीसेकेंड की चलाने के बाद हमें प्रिम्प्ट करना होता है कि यू एरिया से हम किसी दूसरी प्रोसेस को पिकअप करें। तो ये जो प्रिम्प्ट वाला एरो है ये कर्नल रनिंग मोड में एक एक्नॉलेजमेंट है, एक सिग्नल है जो कि स्टेप नंबर 7 में जा रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कोई प्रोसेस प्रिम्प्टेड हुई है। और प्रिम्प्ट का मतलब ये हुआ है कि उसका जो 4 मिलीसेकेंड का टाइम क्वांटा था वो अब फिनिश हो गया है। अब कर्नल एरिया यूजर एरिया से किसी दूसरी प्रोसेस को मांग रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि वो दूसरी प्रोसेस को 4 मिलीसेकेंड के लिए प्रॉपरली चला पाए। तो स्टेप नंबर 2 से प्रिम्प्ट सिग्नल स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 से रिटर्न टू यूजर, दैट मीन्स जो प्रोसेस प्रिम्प्ट हो चुकी थी तो नेक्स्ट प्रोसेस यू एरिया से पहुंच जाएगी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 4 और 6 स्लिप एरिया कहलाता है या स्लिप एरिया कहलाता है। यहाँ पे हम उन प्रोसेस को रखते हैं जो हमारी सस्पेंड स्टेट में थी। हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोसेस की जो 5 स्टेट मॉडल है उसमें एक सस्पेंड स्टेट भी होती है जिसको हम वेटिंग स्टेट कहते हैं। तो वेटिंग वाली जो स्टेट है उसको यूनिक्स प्रोसेस दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक है हमारी स्लिप और एक है ए स्लिप। जो लॉन्ग टाइम तक प्रोसेस को अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता है या उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है, ऐसी सिचुएशन में उस प्रोसेस को हम ए स्लिप एरिया में डाल देते हैं। और ए स्लिप एरिया में वो प्रोसेस होती है जो लो है, राइट। ऐसी प्रोसेस को कर्नल एरिया में आने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि उसकी कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है, उसका टाइपिंग वर्क फिनिश नहीं हुआ है, उसके साथ जो कमांड्स अटैच है या कमांड्स उसके अंदर जो नोट की गई थी उसका कुछ DLL फाइल मिसिंग है। वॉट एवर बी द कॉज, किसी भी रीज़न से अगर कर्नल एरिया मोड में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कोई प्रोसेस आ जाती है जिनका परफेक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या किसी रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी नहीं है, तो वो स्लिप मोड में चली जाती है और यहाँ पर वो वेट करती है अपने वेकअप कॉल्स का। जैसे ही वेकअप्स कॉल होता है तो वापस से यू एरिया में स्टेप नंबर 3 में दैट मीन्स रनिंग स्टेट में चली जाती है। तो वेकअप्स का मतलब होता है कि स्टेप नंबर 4 में जितनी प्रोसेस थी जो एस्लिप मोड में थी, काफ़ी टाइम से उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था किसी कारण से, वो मेमोरी में एस्लिप मोड में पड़ी होती है। और फिर जब उन्हें बैकअप कॉल्स मिलता है तो फिर वो स्विच हो जाती है स्टेप नंबर 3 में, फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाती है। रनिंग से फिर स्टेप नंबर 2 में जाएगी और अपना एग्जीक्यूशन करेगा और एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 है ये टर्मिनेटेड स्टेट, जिसको हम ज़ोंबी स्टेट भी कहते हैं। तो इस तरह से एक हमारी प्रोसेस का कंप्लीट स्टेट मॉडल होता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस की 9 साइकिल होती है, 9 स्टेट्स होती है, राइट। इसकी जो प्रोसेस की जो लाइफ साइकिल है उसमें टोटल 9 स्टेट्स हैं। तो स्टेप नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्क सिस्टम से एक प्रोसेस क्रिएट होती है, फिर वो अपने यूज़र एरिया में जाती है। यूज़र एरिया में स्टेप नंबर 3, 5, 7, 1, 4 एंड 6 ये टोटल हमारा यू एरिया है। इस यू एरिया में वो सभी प्रोसेस होती है जिनको किसी न किसी रीज़न से स्वेप आउट किया गया है या मेमोरी नहीं मिलने पर स्वेप आउट किया गया है,
वापस से उन्हें स्वेप इन किया जाता है, राइट। स्टेप नंबर 2 कर्नल एरिया कहलाता है। यहाँ पे उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जिसमें कुछ ऐसे कमांड्स या किसी प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ किया गया है और उस प्री डिफाइंड फंक्शन का कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो हमने डायग्राम में देखा था कि अगर यूज़र नंबर 1 में देखा जाए कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि कर्नल एरिया में रन होगा, तो ls कमांड का जो भी कोड होगा वो कर्नल एरिया में रन होगा, बट ls कमांड का आउटपुट u एरिया में डिस्प्ले होगा। pwd कमांड का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा कर्नल एरिया में, बट इसका आउटपुट आपको दिखाई देगा u एरिया में। इसी तरह से अगर यूज़र 2 की बात करें, u एरिया 2 की बात करें, तो प्रोग्राम 1.c में printf, scanf, getch, clr, scr कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो यूज़र ने डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में लिखे हुए थे, बट उनका एग्जीक्यूटेबल कोड उसमें अटैच नहीं किया था। तो जब रनिंग स्टेट में ये प्रोसेस रन होती है तो सीपीयू को इसका कोड रिक्वायर्ड होता है इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए। इसलिए उसका कोड सर्च करने के लिए वो उतने कॉन्टेक्स्ट को लेके चला जाता है कर्नल एरिया में। कर्नल एरिया जो हमारी स्टेप नंबर 2 है वो इस एरिया में है, और इस एरिया में प्रिंटफ का कोड निकाला जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा कि वो काम कैसे करता है, और फिर आपको वापस से उसको यू एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यू एरिया में इस तरह से प्रोसेस ट्रांसफ़र होती है, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर कर्नल एरिया में आती है, फिर वापस ट्रांसफ़र होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, और फाइनली जब कर्नल एरिया में प्रोग्राम्स पूरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं तब लास्ट स्टेट हो जाती है हमारी 9, जो कि एक ज़ोंबी स्टेट है, जो कि टर्मिनेटेड स्टेट है। यहाँ पे फाइनली प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, अपने आउटपुट को डिस्प्ले करने के बाद अपने सारे रिसोर्सेस रिलीज कर देती है, और फिर वो डेड हो जाती है। और इन्हीं बीच में इंटरप्ट आते हैं तो उनको हैंडल किया जाता है। इंटरप्ट अगर मास्केबल है तो थोड़ा डिले पॉसिबल है, बट अगर नॉन मास्केबल है तो प्रोसेस जो स्टेट नंबर 2 पर थी उसको वापस से प्रिंट कर दिया जाता है और उसको स्टेप नंबर 7 में पहुंचा दिया जाता है। वापस से फिर उसको यूज़र एरिया में पहुंचाया जाएगा, फिर यूज़र एरिया 1 से उसको स्टेप नंबर 2 में पहुंचा दिया जाएगा, राइट। तो ये साइकिल तब चलेगी जब राउंड रोबिंग सीपीयू एल्गोरिथम चल रही हो या टाइम क्वांटा के बेस पर कई सारे प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो बार बार कर्नल एरिया से यू एरिया में प्रोसेस इस तरह से शिफ्ट होती रहेगी। स्लिप एरिया और स्लिप एरिया ये वो एरिया है मेमोरी में जिनमें मतलब कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनका एग्जीक्यूशन को अभी टाइम है, राइट। जैसे जिनका इंटरव्यू अभी नहीं हो रहा है तो वो आराम से घूम सकते हैं, कहीं ना कहीं स्टे कर सकते हैं। बट अगर ऑलरेडी रोल नंबर 1 का इंटरव्यू चालू है तो रोल नंबर 2 को वहीं पे रहना होगा, बट रोल नंबर 10 थोड़ा बहुत घूम सकता है इधर उधर। तो आप इसी को इस तरह से माने कि किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चालू था, बट उसको कुछ ना किसी रीज़न से उसको स्वेप आउट कर दिया गया है और वो स्लिप मोड में चली गई है। यहाँ पे वो स्लिप मोड में है, जो कि मेमोरी का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे वो वेट करती है और फिर वापस से उसे स्वेप आउट किया जाता, वेकअप कॉल दिया जाता है और फिर वो रेडी टू रन मेमोरी में आ जाती है। तो ये मेमोरी के कुछ 4 फंक्शंस है, स्टेप नंबर 3 से 4, 4 से 6, 6 से 5 एंड 5 से 3। तो ये उन प्रोसेस को भी वेकअप कॉल्स दिया जाता है जो कि लॉन्ग टाइम से एग्जीक्यूशन में नहीं आई हैं, जिनको भी कंप्लीट एग्जीक्यूशन करना है, उनको भी सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी प्रोसेस को भी वेकअप कॉल दिया जाता है ताकि वो प्रोसेस भी स्टेप नंबर 3 में आ जाए और यहाँ पे सीपीयू एलोकेट हो जाए। तो ये कुछ स्टेप्स किस तरह से ये पूरा यूनिक्स का प्रोसेस स्टेट मॉडल काम करता है। A process is starts our execution in user mode. प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है यूज़र मोड से। A process is executing in kernel mode. प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कर्नल मोड में होता है। A process is not executing due to some reason but ready to run as soon as kernel free or scheduled it. अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है किसी रीज़न से बट वो रेडी टू रन है तो उसे कर्नल फिर से रीशेड्यूल किया जाता है और कर्नल अगर फ्री है तो उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है।
अब प्रोसेस इज स्लीपिंग एंड रिसाइड्स इन मेन मेमोरी। अगर प्रोसेस स्लीपिंग मोड में है तो वो मेन मेमोरी में किसी एरिया में रिसाइड्स करती है ड्यू टू एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अगर उसके कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट थी जो उस टाइम पर उसको नहीं मिल पाई थी प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के समय, तो प्रोसेसर उससे इंटरप्ट करके बाहर कर देता है और स्लिप मोड में ट्रांसफर कर देता है। The process ready to run, but sweeper program must sweep the process into main memory before the kernel can schedule it to execute. प्रोसेस जो रेडी टू रन स्टेट में है, मतलब जिनको सीपीयू अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो स्वेपर प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जो स्वेप आउट कर देते हैं, स्वेप इन कर देते हैं टाइम टू टाइम प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी में, और इससे पहले हम कर्नल को शेड्यूल कर देते हैं ताकि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए। स्टेप नंबर 6 में द प्रोसेस इज स्लीपिंग एंड द स्वेपर हैज swept the process to hard disk to make room for other process in main memory। तो स्लीपिंग वाली स्टेट में जो भी प्रोसेस है या जो प्रोसेस करेंटली स्लीपिंग मोड में है, स्वेपर प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको स्वेप इन कर देते हैं हार्ड डिस्क से एक प्रॉपर प्राइमरी मेमोरी में। तो अगर कोई प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं हो रही है तो उनको प्राइमरी मेमोरी से हार्ड डिस्क में किसी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है, वापस उनको हार्ड डिस्क से स्वेप इन कर लिया जाता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो ये हमारी स्टेप नंबर 6 बताती है। स्टेप नंबर 7, द प्रोसेस इज रिटर्निंग फ्रॉम द कर्नल टू यू एरिया बट द कर्नल प्रीएम्प्ट इट एंड डज द कॉन्टेक्स्ट स्विच टू शेड्यूल अनदर प्रोसेस। तो स्टेप नंबर 7 ये बता रहा है कि प्रोसेस कर्नल एरिया से यू एरिया में शिफ्ट हो रही है क्योंकि कर्नल ने उसको प्रिम्प्ट कर दिया है। प्रिम्प्ट करने का मतलब उसको अपने एग्जीक्यूशन से हटा दिया है क्योंकि किसी दूसरी प्रोसेस का शेड्यूल आ चुका है, टर्न आ चुका है। तो अब दूसरी प्रोसेस का जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो अब शिफ्ट हो जाएगा। प्रिम्प्ट का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ, सीपीयू कैन प्रिम्प्ट टू लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस if higher priority process comes into the kernel area। so lower priority की प्रोसेस अगर आती है तो वो वहां से हटा सकता है क्योंकि सबसे पहले हम उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे जिनकी प्रायोरिटी हाई हो। तो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है और अगर सीपीयू लोअर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसे वहीं पे स्टॉप करेगा और उसे ट्रांसफर कर देगा और हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को अपने सीपीयू रजिस्टर में लेकर आ जाएगा, दैट मीन्स कर्नल एरिया में लेकर आ जाएगा। नॉन प्रिम्प्ट सीपीयू नेवर स्वेप आउट करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। अगर प्रोसेस का स्ट्रक्चर या प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन का जो स्टाइल है वो नॉन प्रिम्प्टिव है, उस केस में प्रोसेसर कभी भी स्वेप आउट नहीं करेगा। तो जो भी उसका प्रोसेसिंग टाइम है उस पर्टिकुलर प्रोसेसिंग टाइम तक के लिए सीपीयू उस प्रोसेस के साथ हमेशा स्टे करेगा। मतलब एक बार प्रोसेसर अगर एलोकेट हो चुका है तो उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही वो वहाँ से उसको स्वेप आउट करेगा। तो बीच में वो प्रिम्प्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रिम्प्ट और नॉन प्रिम्प्ट की दो कैटेगरी होती है। प्रोसेस अगर प्रिम्प्ट कैटेगरी में है तो प्रोसेसर शिफ्ट हो सकता है, अगर प्रोसेस नॉन प्रिम्प्ट कैटेगरी में है तो प्रोसेसर शिफ्ट नहीं होता, उसे कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देता है। और स्टेप नंबर 8 में द प्रोसेस इज न्यूली क्रिएटेड, एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है एंड इज इन अ ट्रांजिशन स्टेट, और उसका ट्रांजिशन स्टेट वो आ जाती है, मतलब आगे बढ़ जाती है। द प्रोसेस एग्जिस्ट बट इट इज नॉट रेडी टू रन नॉर इट इज स्लीपिंग। दिस स्टेट इज द स्टार्ट स्टेट फॉर ऑल द प्रोसेसेस एक्सेप्ट प्रोसेस 0। तो स्टेप नंबर 8 में क्या बताया गया कि एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है और उसका ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो जाता है। प्रोसेस एग्जिस्ट होती है बट वो रेडी टू रन स्टेट में नहीं है, तो हम उसको स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, उसको स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं। हर प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो स्लीपिंग मोड में जा सकती है केवल एक प्रोसेस को छोड़ के, वो है इस प्रोसेस नंबर 0। यहाँ पे प्रोसेस नंबर 0 है हमारी पेरेंट प्रोसेस जो कि फॉर्क सिस्टम कॉल से बनी थी। डायग्राम में ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोसेस है,
इसको हम कहते हैं प्रोसेस नंबर 0। तो हर एक प्रोसेस का, जैसे ls कमांड है तो इसका भी एक प्रोसेस नंबर 0 तैयार होगा और फिर इसके चाइल्ड प्रोसेस तैयार होती है। तो प्रोसेस नंबर 0 जो कि पेरेंट प्रोसेस है वो कभी भी स्लीपिंग मोड में नहीं जाती, क्योंकि वही चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करती है। तो इस तरह से एक पूरा यूनिक्स का प्रोसेस मॉडल एग्जिस्ट करता है। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, आज के लेक्चर का कंटेंट, कि एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो यूनिक्स भी हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस जब क्रिएट होती है तो किस किस स्टेट से होकर वो फिनिश होती है और उसके साथ क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, मेमोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, यूज़र एरिया हम यहाँ पे किसे कहते हैं, कर्नल एरिया क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ज़ोंबी स्टेट क्या है, इंटरप्ट क्या है, सिस्टम कॉल्स क्या है, प्रिम्प्टेड नॉन प्रिम्प्टेड प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है।